अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Welcome my dear sisters. Innal hamdulillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Are we happy with Allah being our Lord? क्या हम इस बात से राजी है कि अल्लाह हमारा रब है? Of course, certainly. हाँ, क्या हम इस चीज yes, are we happy with Islam being our religion? Yes, alhamdulillah. And are we happy with Muhammad sallallahu alaihi wasallam to be our prophet? Yes, alhamdulillah. Very lucky. So these will be the three questions that will be asked in the grave. First three questions. इसलिए हम क्या पढ़ते हैं? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा. मेरे पीछे पढ़ेंगी चांद आंटी? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा. रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा. वबिल इस्लामी दीना. वबिल इस्लामी दीना. वबि मुहम्मदिन. वबिल मुहम्मदिन. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. रब्बा. Sorry, नबिया. रबिया. नबिया. नबिया. Yes. He is a nabi. Yes. Yes. So इसको मैं स्क्रीन पे भी लगा देती हूँ. और ये हमें रोज पढ़ना है, लेकिन सोच समझ कर पढ़ना है कि अभी जो हमने डिस्कस किया, these three questions will be asked in the grave. First three questions, and we have to live by these three answers. कि हाँ ए अल्लाह, मैं राजी हूँ कि तू मेरा रब है ना? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा. कि yes, I am happy, I am so happy, I am so glad that Allah, you are my Rabb, you are my Lord, you are my sustainer, है ना? And ya Allah, I'm so happy with the religion of Islam. Alhamdulillah. Otherwise, what would I be without Islam? And number three, ya Allah, I'm so glad that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is our prophet. I'm so lucky to be his ummah. So these are the 3 points. इस दुआ को, इस जिक्र को जब भी पढ़े, सुबह शाम पढ़े और उसके साथ हम जिए. और अगर हम अल्लाह से शिकवा करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, then how can we say that I am happy with Allah? So then we are contradicting. इसीलिए इस चीज को सोच समझ कर सुबह शाम हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह. Okay? Can you read the meaning in English, Shadant, until then we start? Yes. I am pleased with Allah as Lord and Islam as religion and Muhammad, peace be upon him, as a prophet. Ameen. Ameen. Alhamdulillah. So we have been reading it every day, but now we understand what we are saying to Allah, isn't it? Chale. We start today's lesson. We are studying Surat Al-Baqarah, para number 1, from ayat number 69 onwards. So, पहले तिलावत होगी, आप सब कुरान खोल लीजिए. Over to Suraya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم. Ameen. Sadaqallahul Azim. Ayat number 67 onwards, we started with another event that had taken place with Bani Israel. It was about Musa alayhi salam. याद है आपको what had happened? कि there was an uncle and his nephew. Uncle was very rich, and the nephew, he had an eye on his property, so he murdered his uncle. And what did he do? He he started shouting about the murder, and he went to Musa alayhi salam and said that, "Oh Musa, I don't know who has murdered my uncle, but can you please find out? Ask Allah to give us some sign that who is the murderer." So now, from ayat 67 onwards, what did we see? That Musa alayhi salam ने क्या किया? अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह हमें बता दे कि किसने ये कत्ल किया है. तो क्या अल्लाह ताला ने क्या दिया था 67 में हुक्म? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहु बकरतन. क्या मतलब है इसका? कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरी कौम, बेशक अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या करो, तुम ज़बह करो एक गाय. दैट यू मस्ट स्लॉटर अ काउ. तो उन लोगों ने क्या जवाब दिया था? We are just revising 67 and 68. मजाक उड़ाते हो? हाँ. So they said कि are you mocking us? Are you making a joke out of us? ये क्या मजाक है? हम तुमसे कह रहे हैं कि ये मर्डर किसने किया है, ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करना है, और आप हमसे कहते हो कि एक गाय ज़बह करो. What is the relation between the two? So they were puzzled. But even though they were puzzled, भले वो लोग बहुत confusion में थे, but is this the way, a manner to talk to your prophet? So what does it show? That they did not respect Musa alayhi salam as he should have been respected, isn't it? And they are telling him कि आप हमारा मजाक उड़ा रहे हो. So this is how we talk to our friends, or we talk to somebody whom we do not trust. So what did Musa alayhi salam reply? Qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin. What does that mean? मैं चाहता हूँ कि पनाह में आ जाए अल्लाह की और न हो सब जालिमों जाहिलों में से. No, it doesn't mean like that. It means Musa alayhi salam was, of course, he was offended
है ना, because his people thought that he was making a joke out of them, he was mocking them. So he sought the protection from Allah. अऊज़ु बिल्लाह, हम लोग पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाह, इसका मतलब क्या होता है सुरैया? कब पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाह और इसका मतलब क्या होता है? औज़ु बिल्लाह मीन्स बाजी मैं पनाह चाहता हूँ, पनाह में आना चाहता हूँ अल्लाह की। हाँ, और वो दोनों जेंडर के लिए है। अऊज़ु बिल्लाह जो है ना, वो चाहे हम में मेल हो या फीमेल हो, तो मैं पनाह में आती हूँ, आई सीक प्रोटेक्शन ऑफ अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाह इसका मतलब इतना ही है कि मैं अल्लाह की पनाह में आ जाती हूँ। और फिर हम तो रोज क्या पढ़ते हैं कुरान पढ़ने से पहले? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि अल्लाह तू मुझे शैतान से बचा ले जो मरदूद है, वन हु इज कर्स्ड। यहाँ पर उन्होंने कहा अऊज़ु बिल्लाह कि आई सीक रेफ्यूज इन अल्लाह, किस चीज से? अन अकूना मिनल जाहिलीन, इस चीज से कि मैं हो जाऊं जाहिलों में से। That I would be, I seek protection from Allah, that I should not become from amongst the ignorant ones. जाहिल का मतलब क्या होता है? इग्नोरेंट। तो ये मजाक उड़ाने का काम किसका होता है? जाहिलों का होता है, इग्नोरेंट लोगों का होता है। एंड हु वाज मूसा अलैहिस्सलाम? ही वाज द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। सो अल्लाह के प्रॉफिट कभी भी मजाक नहीं उड़ाते, न जाहिलों वाली बातें करते हैं, न जाहिलों वाली हरकतें करते। नाउजुबिल्लाह, they are at the highest level of their manners and at the epitome. You got it? So will they ever lie? Do the messengers and prophets of Allah No. ever lie? No. No, they never lie. So मजाक में क्या होता है? मजाक में तो झूठ ही होता है ना। मजाक किसको कहते हैं? समथिंग you say and then later on you say I didn't mean this. Okay, तो मजाक, joke is nothing but some form of a lie. It is a mockery. You're trying to hide or you're trying to insult someone or annoy someone only to make fun. तो prophets never do that. और ये जाहिलों का काम होता है। तो जब उन पर ये इल्जाम लगाया उनकी कौम ने, तो उन्होंने अल्लाह से पनाह मांग ली कि अल्लाह तू मुझे अपने पनाह में ले ले, कि मैं कभी ऐसे जाहिलों वाला काम ना करूं। So not possible. So what lesson did we learn here, Chana aunty? कि हर वक्त हमको अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए कि हम उसकी हिफाजत में रहे और ये मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। Very good. मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। Yes, Shamim, what is your moral from here? Same बातें कि हमें we don't know the whole truth and yet we try to ridicule others, so we should refrain from doing that. Okay. Surya. बाजी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और दीन के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। Exactly. मजाक जो है ना उसमें झूठ होता है, तो ऐसा मजाक ना करे जिसमें झूठ हो, नंबर 1। नंबर 2, दीन के मामले में अल्लाह के नाम के, अल्लाह के नबी के नाम पर, कुरान के नाम पर, हदीस के नाम पर कभी भी झूठ ना, कभी भी मजाक ना बनाए, है ना। कभी कभी हम लोग ऐसी गैदरिंग में बैठे होते हैं एंड कभी बुरखे वालों का मजाक उड़ा देते हैं, कभी दाढ़ी वालों का, कभी ऊंचे पजामे पहनने वालों का, जमात से नमाज पढ़ने वालों का, या कोई ऐसे सुन्नत तरीके से बैठ के खाना खा रहे होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। सो ये सब जाहिलों वाली हरकतें हैं और गुनाह के काम है। ओके, आयत 68। फिर उन्होंने 68 में अल्लाह से दुआ करने के लिए कहा कि अच्छा ये जो गाय ज़बा करनी है, तो गाय ज़बा करने का अल्लाह का हुक्म है, तो ए मूसा अलैहिस्सलाम जरा आप अपने रब से, तेरे रब से दुआ करो
और पूछो तुम्हारे रब से कि वो बयान करे हमारे लिए कि कैसी हो वो गाय। अब देखो उनको क्या हुक्म मिला था कि एक गाय ज़बा कर दो। तब उनका क्वेश्चन क्या है कि अल्लाह से पूछो ए मूसा, तुम्हारे रब से तुम पूछो हमारे लिए कि कैसी हो वो गाय। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा और एक्सक्यूज मी, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, आयत नंबर 68 हम पढ़ चुके हैं, इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरतुन, कि बेशक वो, अल्लाह फरमाता है कि वो एक गाय हो, वन काउ, ला फारिजुन, नहीं वो बूढ़ी हो, वला बिक्रुन, और ना ही वो बच्ची हो, नाइदर वेरी ओल्ड नॉर वेरी यंग, अवानुम बैन ज़ालिका, दरमियानी, बीच में हो उसके, that should be middle aged, neither very young nor very old. فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ, so do whatever you have been instructed, you have been commanded, जो कुछ हुक्म मिला है वो कर गुजरो। अभी इससे क्लियर और क्या चाहिए था कि ऑर्डर क्या है कि एक गाय ज़बा करनी है, कैसी हो वो, neither very old nor very young, middle aged. So wasn't it a sufficient order? It was. लेकिन इसको क्या कहते हैं, ना करने के 100 बहाने। तो उनके क्वेश्चंस खत्म ही नहीं हो रहे, वन बाय वन अब क्वेश्चंस आते जाएंगे। सो फ्रॉम हियर वी बिगिन 69 ऑनवर्ड्स। कॉलू, दे सेड, उदउ लना, उदउ में दुआ वर्ड है, सो प्रे लना फॉर अस। They said to Musa alayhi salam that you pray for us, Rabbaka, to your Lord. Look at their statements, huh? Yubayyi lana, to make clear, lana, to us, ma lawnuha, what should be its color, which colored cow. Qala, he said, innahu yaqulu, indeed Allah subhanahu wa ta'ala says, innaha baqaratun, indeed it should be a cow, safara'u, saffron colored, it should be a color between yellow and orange, saffron. Faqihun, bright saffron, launuha, its color, it should be very bright colored. Tasurrun, tasurrun, pleasing, pleasing to whom? The eyes. तसुर्रुन नाज़रीन, to those who see it. नाज़रीन में ऑडियंस वर्ड आता है इसमें, कि देखने वालों को वो कैसी लगे, स्पेक्टेटर्स को बिल्कुल ही प्लीजिंग लगे। उर्दू में करते हैं इसको, कॉल उदउ लना, उन्होंने कहा तू पुकार हमारे लिए, रब्बक, तेरे रब से, युबय्यी लना, युबय्यी में बयान वर्ड मिलता है कि वो बयान करे, लना, लिए हमारे। We were seeing all these shortcuts that day. ल is लिए, ना is हमारे, माँ कैसी हो, माँ कैसी हो, लौनुहा, रंगत उसकी, उर्दू में लौन कहते हैं कलर को, रंग को, कि विच कलर विच शेड। कॉल, तो मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि इन्नहु यक़ूलु, बेशक वो अल्लाह, वो फरमाता है, इन्नहा बकरतुन, कि बेशक वो गाय, सफराउ, कैसे रंग की हो, जर्द रंग की। जर्दा खाते हैं हम लोग, मीठा जर्दा कौन से कलर का होता है? Yes, saffron. हाँ, बस वही केसर। जर्दे का ही रंग होता है, केसर वाला, राइट। फाकिउन, खूबसूरत, लौनुहा, रंगत उसकी, तसुर्रुन नाज़रीन, खुश करती हो देखने वालों की नजरों को। देखिए नाज़रीन में नजरे वर्ड है ना, तो देखने वालों की आंखों को बिल्कुल खूबसूरत लगे, प्लीजिंग लगे, अट्रैक्टिव लगे, ऐसा होना चाहिए उसका रंग। अब कौन सी कंडीशंस आ गई?
दो कंडीशंस. ऊपर की आयत में व्हाट वाज द कंडीशन अबाउट एज, इट शुड बी मिडिल एज्ड. इस आयत में कौन सी कंडीशन आ गई अबाउट द कलर. तो अभी ब्लैक कलर चलेगी, बोलो ब्लैक कलर की काउ चलेगी. नहीं नहीं नहीं. बाजी, व्हाइट, नहीं. नहीं बाजी, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं. नहीं. और क्रीम कलर की, नहीं. रेड कलर की, ब्राउन कलर की, नहीं. कोई भी नहीं. इतनी सारी. अभी आप हमारी क्या हो गई, वो उतने सारा जो सर्च है वो लिमिटेड हो गया ना, कि बस यही रंग की हो, और बच्ची भी नहीं चलेगी, बूढ़ी भी नहीं चलेगी, मिडिल एज ही हो. तो ये सर्च इजी हो रहा है या मुश्किल हो रहा इजी. है? डिफिकल्ट हो रहा है बाजी। डिफिकल्ट. चांद डिफिकल्ट. आंटी, चांद आंटी क्या हो गया आपको? So it is getting difficult because of their irrational questions, है ना. कसरत सवाल की वजह से उनके ऊपर मुश्किल बढ़ने लगी. अब देखिए कॉलू, आयत नंबर 70. कॉलू दुऊ लना. अभी भी वो लोग जो है क्वेश्चंस करते ही जा रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उनका, कॉलू, वो सब बोले, उदू, उदू में दुआ वर्ड है ना, कि तू पुकार, लना, लिए हमारे, रब्बक, तेरे रब से. शमीम, आई कांट सी द स्क्रीन. युबय्यिलना, कि वो बयान करे, लिए हमारे, माहिय, कैसी है, कैसी हो वो. अभी भी पूछ रहे कैसी हो वो, बताओ जरा हमको. इन्नल बकरत, अभी क्वेश्चन सुनिए. बेशक गाय, क्या गाय ही चाहिए? आर यू श्योर इट शुड बी अ काउ? तशाबह अलैना, वो तशाबे हो गई हम पर. शुबा वर्ड है इसमें, उर्दू वाले के लिए शुबा. डाउट है हमको, वी आर स्टिल डाउटफुल. व इन्ना, और बेशक हम, इंशा अल्लाहु, इन अगर, शाअ चाहा, अल्लाह ने अगर चाहा, अल्लाह ने, लमुहतदून, बेशक हम हिदायत पाएंगे. इसमें कौन सा वर्ड आया यहाँ पर, इंशाअल्लाह. तो अभी भी वो डाउट में है. क्या यू श्योर मूसा अलैहिस्सलाम, क्या अल्लाह ने गाय ही ज़बा करने का ऑर्डर दिया है? क्या गाय ही ज़बा करनी है? हमको तो अभी भी डाउट है. वी आर स्टिल कंफ्यूज्ड. हाँ. फिर उन्होंने फाइनली ये वर्ड्स कहे कि अच्छा, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो हमें जरूर हिदायत मिल जाएगी कि हमें क्या करना है. We will be guided. In English, qalu ud'u lana. They said, O Musa, pray for us, Rabbaka, to your Lord, yubayyi lana, to make clear to us, ma hiya, what it is. Innal bakarata, indeed the cow, tashabaha alayna, look alike to us. All cows look alike to us. Wa inna, and indeed we, insha Allahu, if Allah wills, la muhtadun, surely we will be guided from amongst the guided ones. तो फिर से वो अपना कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं. अभी पूछ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने फाइनली इंशा अल्लाह कह दिया. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये लोग इंशा अल्लाह नहीं कहते तो कयामत तक उनको ऐसी गाय नहीं मिलती जो ऐसे उनके अल्लाह के इस कमांड्स पर पूरी उतरती हो. It would not have been possible if they had not said Inshallah. So what is the moral for us?
कि हमें भी अपने हर काम के पहले इंशाल्लाह कहना चाहिए, तो उसमें अल्लाह की मदद आ जाती है। वेरी गुड। फिर यहाँ पर जो है ना, इन्होंने जो बेकार के सवाल किए, अनवांटेड इरैशनल क्वेश्चंस, है ना, तो इसके बारे में भी हदीस हम लोग लिखेंगे, लेकिन पहले हम इस वाक्य को कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी विल कम बैक टू दिस अनवांटेड इररिलेवेंट क्वेश्चंस। और इसकी बहुत सारी हदीस है और बहुत डरावनी हदीस है, जिसको हम लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं। तो अब देखते हैं 71 में क्या हुआ। अब इन्होंने इंशाअल्लाह तो कह दिया, अब क्या हुआ, इनको ये गाय ऐसी मिली नहीं मिली, लेट अस सी। ओके, और इंशाअल्लाह कब कहना चाहिए? Excuse me. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम Little सलाम। correction on इंशाल्लाह. हर नियत के वक्त इंशाल्लाह और हर काम के वक्त बिस्मिल्लाह. ओके, इंशाअल्लाह का मतलब क्या है? हमारे यहाँ इंशाअल्लाह का कंसेप्ट क्या हो गया है पता है? कि अगर समझो किसी ने मुझे दावत दी, if somebody is invited me for a party or wedding, एंड हम लोग अभी आजकल ऐसा करने लगे, जब मुझे नहीं जाना होता है तो मैं ये कह दूं कि अच्छा इंशाल्लाह मैं आऊंगी, मैं इंशाल्लाह आऊंगी, एंड दैट मीन्स आई विल नॉट कम। अस्तगफिरुल्लाह, दैट्स रॉन्ग, दैट्स अ रॉन्ग कांसेप्ट। इंशाल्लाह का मतलब ये होता है कि मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी, और फिर अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो इट विल हैपन। You get it? You have to put your 100% and then, because ये फ्यूचर के लिए ना, जो भी अमल हम फ्यूचर में करना है उसके लिए हम इंशाल्लाह कहते हैं। तो जैसे अगर आपने आज नियत कर ली कि कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं फिर से ज्वाइन करूंगी, और आपने नियत कर ली, आपने कोशिश भी की, बट किसी वजह से अगर आपका वाईफाई बंद है, आपका जूम नहीं चल रहा है, और there could be any other reason valid, तो आप नहीं ज्वाइन कर पाए, तो now that was out of your control. ओके, तो हमको इंशाल्लाह को ऐसा टूल नहीं बनाना है झूठे वादे करने का। चलिए 71 पे चलते हैं। कॉल, उसने कहा, इन्नहु, किसने कहा अभी वापस? मूसा अलैहिस्सलाम ने। कॉल और कॉलू के बीच में आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? We will learn this one difference today. Caller is singular, one person is saying. Caller, उस एक शख्स ने कहा, लिख लीजिए, कॉलर एक सिंगुलर पर्सन ने कहा, और कॉलू, लाम वाव पेश लू, कॉलू उन सब ने कहा, प्लूरल के लिए आता है। Got it? What is the difference? चानंटी? काला मीन्स एक शख्स, एक पर्सन ने कहा, एंड कालू यानी उन सब ने कहा। यस, जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ही सेड और शी सेड, एंड प्लूरल में आता है दे सेड ना। ओके, तो यहाँ पे कॉलर कौन है? फिर मूसा अलैहिस्सलाम। इसके नीचे लिखना होगा आपको आपके पारे में, अदरवाइज यू विल नॉट नो ये किसने कहा। तो यहाँ पे वन सिंगल पर्सन में कौन बात कर रहे? कन्वर्सेशन मूसा अलैहिस्सलाम। सो कॉलर के नीचे आपको लिखना होगा कि किसने कहा। वहां पे मूसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं है क्योंकि ये कन्वर्सेशन चल रहा है, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यकूलू, वो फरमाता है, इन्नहु, सॉरी, बेशक वो अल्लाह, यकूलू, वो फरमाते हैं, कौन? अल्लाह ताला, इन्नहा, कि बेशक वो, अभी हा किसके लिए आया है? गाय के लिए। बकरतुन, एक गाय हो, ला जलूलुन, नहीं वो जोतती, तुसीरुल अर्द, जमीन को जोतने वाली। जमीन को जोतने वाली का मतलब होता है टू प्लाउ द लैंड, टू प्लाउ द फार्म। तो वो जो प्लाव का चढ़ाया जाता है, उसके गले में प्लाव चढ़ाया जाता है, PLOUGH,
उसको क्या कहते हैं उर्दू में, पता है किसी को? वो जो बैल या गाय के गले पर प्लाव चढ़ाया जाता है बाजी जिससे हल प्लॉइंग, कहते हैं। हाँ हल कहते हैं, वेरी गुड, हल। हाँ, तो वो जो हल चढ़ाई हुई जमीन जोतने वाली गाय ना हो, that means that cow should not be working in the farm, okay? वला तस्की, और ला नहीं, तस्की नहीं वो पानी सैराब करती हो, पानी पिलाती हो, अलहर्स खेती को, खेती को पानी पिलाने वाली भी नहीं होनी चाहिए। आपने कभी देखा है कि खेती बाड़ी में वो जो पानी होता है कुएं में से निकाल कर उसको खेत में पानी देते? वेट आई विल शो यू द पिक्चर। हाँ एक सेकेंड, माय गॉड। हाँ ये दिख रहा है, दिस इज प्लॉइंग, हल चला रही है वो गाय। कैन यू सी इट निशात? जी बाजी। हाँ, तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो गाय जो है ना ये हल चलाने वाली नहीं होनी चाहिए। और दूसरा होता है कि कुएं में से पानी निकाल कर वो गोल गोल घूमती है वो काऊ, और उसके गले में वो पानी खींचने वाली रस्सी होती है और उससे वो पानी खेतों में पिलाया जाता है, डाला जाता है। तो वो काम करने वाली भी ना हो, ओके? दैट मीन्स इट शुड बी अ फ्री काउ, नॉट वर्किंग। मुसल्लमतुन, सही सलामत, मुसल्लमा में सलामत वर्ड है, सही सलामत। ला शियत फीहा, ला यानी नहीं, शियत कोई दाग नहीं हो, कोई दाग, कोई ऐब, दाग और ऐब दोनों लिख लीजिए। ऐब का मतलब क्या होता है? कोई नुक्स ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, फीहा उस गाय में। कॉलू, तो अभी वो सब बोले, अल आन जित, हाँ अब लाए तुम, बिल हक सच्ची बात, अब लाए तुम सही बात। फज़बहूहा, फिर उन्होंने ज़िबह किया उस गाय को। ज़बह वर्ड मिला इसमें निशात, जाल बाहा ज़बहू, फिर उन सब ने ज़बह किया उस गाय को। वमा कादू, और नहीं वो लगते थे, या फ़अलून कि वो ऐसा करेंगे, ऐसा लगता नहीं था कि वो ऐसा करते, कि वो गाय को ज़बह करते। We'll do it in English now. 72 थोड़े difficult words है, but nevertheless we'll do it inshallah. Qala, Musa alayhi salam said, Innahu yaqulu, indeed Allah Ta'ala says, Innaha baqaratun, indeed it should be a cow. La zalulun, that should not be trained. Tusirul arda, to plow the earth. Wala taski, and it should not water. Al-harsa, the field, the farm. It should be musallamatun, sound, sound body, completely perfect body. La shiyata, no blemish. Fiha, in it. Qalu, they said, al-ana ji'ta, now you have come, now you have brought. Bil haq, with the truth, now you have come with the truth. Fadabahuha, then they slaughtered it. Wamakadu yaf'alun, and they were near to not doing it. They were very close to not doing it. Allahu Akbar.
तो देखिए फिर से उनके सवालों की वजह से अब अल्लाह ताला ने इन पर एक और कंडीशन क्या लगा दी, that your cow should be a free cow. It should not be working in the farm, neither plowing nor watering. And there should not be a blemish upon it. कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए. It should be only a saffron colored, beautiful, bright, beautiful looking, attractive cow. अल्लाहु अकबर. क्या क्या कंडीशंस थी जरा बताइए शमीम. What were the conditions? Number 1, about the age. About the age, about the how big the cow should What was be. it about the age? कि ज्यादा उम्र वाली भी ना हो और ज्यादा छोटी भी ना हो. It should be medium aged. Okay. Second is was about the size of the cow. No, about the color. About the Second was color, yes. It should not be in black also, white also. It should be zard color. yes, saffron color. And it should be attractive. And it What should was be the next point? The next point was it should not be working in the field, nor it should be watering the farm. There should not be any blemish, कोई दाग धब्बा ना हो उस पर. Okay. No deformity these- also, Baji. No deformation. ये नहीं कि एक कान कटा हुआ हो, एक आंख खराब हो, एक पैर से लंगड़ी हो. No, there should be no deformation at all. Very good, निशात. So यहाँ पे लाशियत में कोई ब्लेमिश यानी दाग धब्बा भी ना हो और कोई ऐब भी ना हो, कोई डिफॉर्मेशन भी ना हो. तो अब जो है ना उन्होंने इंशाअल्लाह कह दिया था, इतनी हिदायत उनको अल्लाह ने दे दी थी. तो अल्लाह का करना ये हुआ कि उनको ऐसी गाय मिल गई. वरना अगर आज हम ढूंढने जाए तो इट इज नॉट वेरी इजी टू लोकेट वन सच काउ. और उन्होंने फाइनली उस काव को ढूंढा भी और उसे ज़बाह भी कर ही दिया. अल्हम्दुलिल्लाह. बट लुक एट देयर मैनर्स. उन्होंने अपने नबी से क्या कहा कि हाँ अब तू सच्ची बात लाया हमारे पास. तो इससे पहले क्या झूठी बात लाए थे? बल्कि इससे पहले उन्होंने बहुत ही सिंपल सी बात कर दी थी कि एक काव ज़बा कर दो. It would have been easier, isn't it? लेकिन उन्होंने अनवांटेड क्वेश्चंस कर करके उस बात को इतनी बढ़ा दिए कि उन्हीं के ऊपर मुश्किलें बढ़ गई. लाइक लास्ट क्लास में हमने एक एग्जाम्पल लिए थे बच्चे का, है ना निशात? व्हाट वाज दैट? होमवर्क के बारे में था. हाँ, होमवर्क के बारे में था. क्या था? बाजी, मैं बोलूं बाजी? हाँ बोलो शमी. कि कभी एक माँ बच्चे को बोलती है कि ना लेट्स स्टडी वन सब्जेक्ट, लेट्स स्टडी. तो बच्चा पहले रोता है एंड देन ही स्टार्ट्स आस्किंग अननेसेसरी क्वेश्चंस कि ठीक है कौन सा सब्जेक्ट ले. फिर उसमें से टेक्स्ट बुक पढ़े या नोटबुक पढ़े. अरे नोट्स तो मैं घर पर स्कूल में भूल आया. लाइक ही विल गिव 100 reasons for not doing the subject and make the task very difficult for himself. Correct. You say that go get your maths book. So the child says maths. Oh mama, where is my maths book? I don't know where it is. Oh, where is my maths book? I'm not getting it. So he's searching for half hour and not getting it, है ना? And then you say, acha, let it be. Go get your English book. And then he searches his English book and then he says, English book, I think it is with the teacher. She had taken it for the correction. So this is how he keeps on making excuses. Why? What is the reason of making the excuses? क्योंकि उसे वो करना ही नहीं है ना? तो ना करने के इतने सारे बहाने. अब फाइनली जो है अल्लाह ने इतनी हिदायत दे दी, उन्होंने गाय ज़बा की. अब व्हाट वाज द रीजन? आपको याद है? वो चाचा भतीजे का वाकया था. सो नाउ लिसन केयरफुली. बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि वो चाचा की वहां लाश पड़ी है और दे डोंट नो हु किल्ड हिम, हु इज द मर्डरर, हु इज द
murdered. So अब जो है ना, now they slaughtered a cow and अल्लाह सुब्हानहू ताला said कि उस गाय का एक हिस्सा लो और उससे उस चाचा की लाश पर टच करो, मारो हल्के से। तो गाय का ज़बा किया हुआ एक हिस्सा लेकर उससे उस चाचा की लाश को ऐसे मारा हल्के से, तो क्या हुआ, वो चाचा जो वहां मरा पड़ा था, हिज डेड बॉडी, उसमें अचानक से जान आ गई और वो दोबारा जिंदा हो गया। He was lifeless. Within some seconds, he stood up. वो जिंदा हो गया। किसने किया उसको? अल्लाह ने उसको जिंदा कर दिया। एंड देन उसने मूसा अलैहिस्सलाम को बताया इशारा करके अपने भतीजे की तरफ कि इसी ने मेरा कत्ल किया है, माय नेफ्यू इज माय मर्डरर। और उतना बताकर वो दोबारा मर गया। ही was dead once again. So ये क्या था? ये एक और इतना बड़ा मौजज़ा था कि इसमें क्या मौजज़ा था इतना बड़ा? What was the मौजज़ा here? What was the miracle? coming back to life. जी Very good, very good. ये था सबसे बड़ा मौजज़ा कि अल्लाह सुब्हानहू ताला कैसे हमें दोबारा जिंदा करेंगे। The belief in the resurrection. Is there life after death? This is a question. और बनी इसराइल का भी इस पर थोड़ा सा जो था उनका ईमान कच्चा था कि अच्छा दोबारा अल्लाह ताला हमें कैसा जिंदा करेंगे। So अल्लाह ताला wanted them to see this कि देख लो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि वो किसी भी तरह एक मुर्दा को दोबारा जिंदा करे और वो बोले भी और बताए भी। और फिर ये देखकर उनका ईमान पुख्ता तो हुआ, और गाय को ज़बा करने का हुक्म क्यों दिया होगा? That also we studied in the last class. कि गाय को ज़बा करने का हुक्म क्यों दिया और किसी एनिमल को क्यों नहीं? Because Baji, because they had started worshipping the cow. तो अल्लाह ताला उन्हें बताना चाहते थे कि इसे कत्ल भी कर सकते, it's not a god. Okay. और आप बताओ चांद आंटी? अपनी नफ्स को मारने के लिए। कैसे नफ्स को मारे? अभी वो चाहते थे ना, वो गाय को जिसकी पूजा करते थे, वर्शिप करते थे शिर्क, तो उसी को मारने लगाया। ओके, जिससे कि उनके दिल में उसकी मोहब्बत कम हो जाए। ये शाहीन। अस्सलाम वालेकुम बाजी। इसलिए भी हो सकता है बाजी के जो काफ था, जो गाय का बछड़ा जो लोगों ने पूजना शुरू किए थे, वो खुद की हिफाजत नहीं कर सकता है, तो इनकी कैसे करेगा? So he wanted a healthy cow, neither old neither young, so that they cannot point out कि because the cow was old, वो खुद की हिफाजत नहीं कर सकता था, because the cow was young, too young to understand, and deformity नहीं रखी ताकि वो बोले कि deformity थी इसलिए वो अपनी हिफाजत नहीं कर सका। So अल्लाह ताला wanted a healthy cow to give them an example कि सब कुछ सही था उस काव के बारे में भी, लेकिन फिर भी it couldn't save itself, so how can it save you all? Very good, Shaheen. Fantastic answer. Excellent. Yes, Suraya. बाजी, उनके दिलों में जो गाय की मोहब्बत रस बस गई थी और उसको मतलब माबूद मानते थे, तो अल्लाह उनका इम्तिहान भी लेना चाहते थे, इसीलिए Very उन्होंने good. आनाकानी की कि हाँ Yes, very good. Correct. Very उनको good नहीं answer. हाँ, तो क्योंकि उनके दिल में एक तो गाय की मोहब्बत थी, वो गाय की अजमत समझते थे। पहले जब वो मिस्र में, इजिप्ट में रहते थे, वहां भी गाय को पूजा जाता था। और जब मूसा अलैहिस्सलाम चले गए कोहे तूर पर, तो सामरी ने सोने का बछड़ा बनाया, तो उसको पूजने लगे। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला वांटेड कि एक ही इवेंट में इतनी सारी उनके अंदर से बुराइयां निकाल दे और वो शिर्क करना बंद कर दे। इनका शाहीन का आंसर वाज वेरी गुड कि
ऐसी गाय अल्लाह ताला ने उनको तलाश करने के लिए कही ताकि उनके पास अब कोई एक्सक्यूज ना बचे कि वो गाय, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट काउज पॉसिबल, जो तंदुरुस्त भी थी, हेल्दी, मिडिल एज्ड एंड हैड नो डिफॉर्मेशन, लेकिन वो काउ इफ इट कैन नॉट save itself, तो how can it be your lord and how can it save you? So by slaughtering such a cow, तुम अपने आप को शिर्क से बचाओ, तुम्हारे दिल में से उसकी वो अजमत कम हो जाए, प्लस उनके दिलों में ये ईमान कम था कि कयामत के दिन अल्लाह ताला हमें कैसे दोबारा जिंदा करेंगे, प्लस कोई भी गुनाह इस दुनिया में, any sin that takes place on this earth cannot be hidden from Allah Ta'ala. अल्लाह ताला हर गुनाह को खोल कर रख देते हैं, and of course Allah is aware, but Allah also opens the secrets. तो आप कोई भी गुनाह करके ये नहीं सोच सकते कि मैं इसे छुपा लूंगी, अल्लाह ताला उसे खोल कर रख सकते हैं, इसमें अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। प्लस ये कि वो जो झूठ बोल रहा था नेफ्यू, और उसके दिल में क्या थी, उसके दिल में लालच थी, ग्रीड थी। तो ये लालच और ग्रीड, इसमें किया हुआ जो गुनाह होता है, वो कत्ल हो या झूठ हो, वो लोगों के सामने भी आ जाता है और वो हमेशा तुम्हारे लिए नुकसान का सबब होगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब जो अनवांटेड क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारी हदीस है, वी विल गो वन बाय वन। ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, कैन यू सी इट ऑन द स्क्रीन? विल यू प्लीज रीड दिस चैनल? जी। And the servants of the most merciful are those who walk upon the earth modestly, and when the ignorant address them harshly, they say words of peace. हाँ, this is the example of कि मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा कि क्या आप हमारा मजाक उड़ाते हो? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अऊज़ु बिल्लाह, words of peace, isn't it? हाँ। We'll go for more ahadith. Yes. हाँ. Will you please read this, Janant? The Prophet said, the greatest sinner among the Muslims is the one who asks about something that was not haram, forbidden, but it became haram because of his asking. Al-Bukhari. Yes. तो ये जो questions, it was all about irrelevant questions. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, the greatest sinner amongst the Muslims is the one who keeps on asking about something that was not haram, that was not forbidden. तो उसके बारे में पूछ कर अब क्या हो गया, उसके कसरते सवाल की वजह से वो हराम कर दिया गया। तो इससे बड़ा गुनाह, इससे बड़ा गुनहगार और कोई नहीं हो सकता। So asking irrelevant questions again and again about halal and haram. अभी तो क्या है? Now we know the book has come. Quran is already revealed. So if we have to search for something halal and haram, we should search it within the book and from the ahadith, or you can ask the scholars, but unnecessarily we should not spread the wrong words. Like sometimes if I don't like eating, say if I don't like eating jhinga, okay, I don't like eating jhinga. What is jhinga? Prawns. So मैं ये बोलूं अगर मेरे घर में कि प्रॉन्स खाना हराम है, प्रॉन्स खाना हराम है, क्या प्रॉन्स खाना हराम है? अभी my kids, they don't know. My kids, they don't know, they're young. So they will keep on learning and listening it from me, and then they will think that eating prawns is haram. So unnecessarily, if I do it, then there's now no one greater sinner than me. You get it?
Allahu Akbar. There are many ahadith about this and very scary. देखिए अभी अल बुखारी में जान आंटी The Prophet of Sallallahu Alaihi Wasallam said, and Allah dislikes gossip for you, asking too many questions and wasting time. Sahih Bukhari. wasting what? Wasting money. Ha. So there are three things in this. Number one, Allah dislikes. Number one, gossip. Number two, asking many questions. And number three, wasting money. Allah dislikes these three things. What are the three things, Nishat? Allah dislikes? Wasting time, wasting money, and I forgot Read that it one. from the screen, Nishat. It is there on the screen. Allah dislikes gossips for you, asking too many Number questions one, and wasting say money. number one, gossip. Number one, gossip. Second, Number asking too two, many questions. huh? And number three, wasting money. Very good. Allahu Akbar. Who would like to repeat this? Shall I repeat, Baji? Yes, Shamin. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, and Allah dislikes, number one, gossip for you. Number two, asking too many questions. And number three, wasting money. Very good. So now, gossip we have studied. क्या है हुमजा लुमजा पूरी एक सूरा नाजिल हो गई इसके बारे में सूरे लुमजा हुमजा and what is it said कि those who gossip on your either behind you or they mock you on your face. हुमजा और लुमजा दोनों में क्या आता है? हुमजा is gossiping behind the back and lumaza is mocking on the face. So for them, there is the greatest level of hellfire, that is well. Astaghfirullah. And for those who collect money, keep on hoarding money, and they do not do sadaqah. So Allah dislikes it for them. Here, second point is asking many questions. Asking many questions, see, asking questions is a very good form of gaining knowledge. लेकिन कसरत सवाल किसके बावजूद जब हलाल और हराम और शरीयत नाजिल हो जाने के बाद उसमें बार बार सवाल करना. Like it is about, we know कि रमजान का महीना कौन सा है, उसमें लैलतुल कद्र कौन सी है. अल्लाह ने फरमाया है तलाश करो के लैलतुल कद्र कौन सी रातों में. In the last 10 odd nights, you have to search for it. That means you have to search for it. Then is there only one night you can specifically say that this is Laylatul Qadr? No. So asking too many questions about it, then Allah dislikes it. And wasting money, astaghfirullah. ये तीनों काम किसके? मुझे तो लगता है हम औरतों के फेवरेट काम है ये तीनों भी. What do you say, Nishat? जी बाजी. हाँ. And हमारे तो Allah ये काम है. dislikes them. Correct. ये Yes, Parvez wants to say lawyers के भी फेवरेट काम होते हैं. lawyers के. If you want me to share something for 2 minutes, I learned a good. 1 minute, Parvez. I want to introduce you to my students. All the students here. Parvez is my husband, my dear husband, Alhamdulillah, and he is a lawyer, and I am also a lawyer. अभी आप बोलिए. Yeah, so I learned a good lesson today by being not well and at home, so I could join the class. Alhamdulillah. So the lesson that I learned was that all this while, for last 22 years, while I was speaking in colleges, I used to tell the students of law that never ask too many questions in cross-examination. Don't ask irrelevant questions because you will invite unnecessary answers which would be damaging to your case. And invariably all the lawyers do that, like just to please their clients, and most of the allegations are based on gossip, and they put questions after questions and invite unnecessary answers which are detrimental to their own case. So for that we used to give them examples of case laws, that in one case, a lawyer asked too many questions which were damaging, and that resulted in the
conviction or death sentence to his client. But I never knew all this while that it is already prescribed in Quran so well, and all three things that I can now relate to that very case, that had he not asked further questions, he could have saved his client. So Quran is so much of knowledge for every field, be it law or life or woman or man, it doesn't matter. It applies to all of us. So yes, that's what I wanted to share. Alhamdulillah, Alhamdulillah. So we can save ourselves from big problems and from also displeasure of Allah. Allahu Akbar. Okay, moving on to next hadith. बहुत सारी हदीस मैं आपको आज बताऊंगी ताकि हमारी जबान थोड़ी कंट्रोल में आ जाए इंशाल्लाह. And it is a reminder for myself too. Chanda aunty. On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, who said, the messenger of Allah, peace and blessings of Allah be upon him, said, part of the perfection of a person's Islam is his leaving that which is of no concern to him. Tirmizi. Subhanallah. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that part of the perfection of a person's Islam, that means if you have to perfect your religion, Islam, then what is a part of it is leaving that which is of no concern to you. वो जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं, उस काम को मैं छोड़ दूं, उस बात को मैं छोड़ दूं जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं. और हम लोग तो यही करते बैठते, वी रीड मैगजीन्स. इसका अफेयर किसके साथ चल रहा है, और वो कौन सी पार्टी में गई थी, और वो मेरी देवरानी कल रात में कहाँ गई थी इतना सज धज कर, और पड़ोसी की लड़की इतनी देर रात कहाँ से आई. Nothing is related to me. So you have to leave it, all that is not concerning to you. Again, my dear husband wants to say something. I'm glad he's talking, Alhamdulillah. We don't get lawyers to talk for free. Parvez? No, I think that was earlier raised hand. Okay. No problem. हाँ, तो इस हदीस से क्या सीखने मिला शमीम? जल्दी बोलो. बाजी, this is an eye opener, क्योंकि हम लोग बहुत irrelevant questions भी पूछते हैं और unnecessary चीजों में घुसते हैं. तो it is for our own peace of mind, and of course Allah Ta'ala has prescribed it, so we should keep away from unnecessary. It is a part of Islam. It is a part of your religion कि दूसरों के फंदों में नहीं पड़ना है. Exactly, I'm telling in very simple words कि दूसरों के फंदों में नहीं पड़ना है. वो जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं, उसमें मुझे नहीं पड़ना है. ये मेरा religion मुझे सिखाता है. Become extremely peaceful, I think, if we stop interfering in other people's affairs. Alhamdulillah, very good. और I hope आप लोग ये सारे screenshots ले रहे हैं. ये सारी अहादीस बहुत ही important है हमारी लाइफ को सुधारने वाली. One more is here. Chanda aunty. The messenger of Allah, sallallahu alaihi wasallam, said, leave that which makes you doubt for that which does not make you doubt. The truth brings tranquility, while falsehood, lies, sows doubt. हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो चीज जिसमें तुम्हें शक हो, डाउट हो, उसे छोड़ दो, उससे जिसमें तुम्हें डाउट ना हो. क्योंकि जिस चीज में शक पड़ जाता है ना, फिर वो शक तुम्हारे सुकून को खा जाता है, और झूठ जो है वो शक की बुनियाद है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में ये होता है ना कि अगर हमने खाना बना के रखा है और कल रात का खाना है, समझो सालन, और अभी है ना आई फील कि इसमें थोड़ा सा मुझे स्मेल आ रही कि इट इज स्पॉइल्ड. तो जैसे ही डाउट हो जाता है ना, तो हमें क्या करते हैं, फिर डाउट हो गया है ना, देन वी डोंट ईट इट, राइट. वैसे ही अगर
मुझे डाउट हुआ कि मेरा वजू है या नहीं है ना, मैंने जोहर पढ़ी थी इसी वजू के साथ, एंड नाउ आई फील कि मेरी असर भी हो जाएगी इस वजू में, बट नाउ आई एम इन डाउट कि मेरा वजू है या नहीं है। तो इफ यू आर इन डाउट तो तुम उठो और फ्रेश वजू बना लो, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। तो जहां डाउट हो उस काम को छोड़ दो। गॉट इट? Yes. Yes. Moving on to next studies. Over to Chanda aunty. ये तो पढ़ चुके हम लोग, पढ़ लीजिए तब तक। The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah hates for you gossip and asking too many questions and wasting of wealth. Yes. One more hadith. No, not this one. Just a moment. हाँ, ये वाली पढ़िए। This is about speaking without thinking. Huraira radiyallahu anhu reported that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, a man utters a word pleasing to Allah without considering it of any significance, for which Allah exalts his ranks in Jannah. Another one speaks a word displeasing to Allah without considering it of any importance, and for this reason he will sink down into hell. Bukhari. Astaghfirullah. Yes. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said कि कभी ये होता है कि इंसान अनजाने में बगैर किसी नियत के कभी एक ऐसा अल्फाज निकालता है अपनी जबान से, बट अनअवेयर है, तो वो अच्छा अल्फाज है तो अल्लाह उससे राजी हो जाता है और उसकी वजह से जन्नत में उसके दर्जात बुलंद हो जाते। और एक इंसान है वो अल्लाह को नाराज करने वाले वर्ड्स यूज करता है और उसके बारे में ज्यादा सोचता भी नहीं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता, और हो सकता है कि उसके वही अल्फाज वही वर्ड्स उसे जहन्नम में धंसाने की वजह बन जाए। सही बुखारी। फॉर अस वुमेन, बहुत सोचे समझे हम लोग बहुत बार ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, कभी अपनी ही औलाद को ऐसी ऐसी गाली ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं, बद्दुआ देते हैं कि जा मर जा तू। अस्तगफिरुल्लाह, नौजुबिल्लाह। अपने बच्चे को बोलते हैं, इतना गुस्सा आ जाता है उसको बोलते हैं जा मर जा तू, शैतान चढ़ गया है तुझ पर, तू शैतान and what not. So those words are displeasing to Allah, but दुआ देना and it can take you to hellfire. और कभी कभी अनजाने में ही हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते जाते हैं क्योंकि जबान पे चढ़े होते हैं, खाना बना रहे हैं और दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह जबान पर चढ़ी हुई है और हमने उसको सोचा भी नहीं था कि अल्लाह ताला हमें उसका इतना बड़ा अजर दे रहे हैं कि उसकी वजह से दर्जात बुलंद हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। So that is better than using bad words. और भी कुछ हजरत अली का कॉल, Yes. इसमें हजरत अली का कॉल है, पहले तोलो फिर बोलो। पहले तौलो फिर बोलो। Very good. Alhamdulillah. There are a few more ahadith. I will share it in the group inshallah. And we have finished this ruku, so we will conclude here. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.